پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، جو کہ جغرافیائی طور پر مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم تھا، جبکہ پاکستان کے ان دونوں حصوں میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اگرچہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ کی بنیاد مشرقی بنگال میں رکھی گئی تھی، لیکن پاکستان کا یہ حصہ تاریخی اسباب کی وجہ سے سیاسی و سماجی اور ثقافتی سطح پر مغربی حصے سے مختلف تھا، جو بعد میں اختلافات کا باعث بنا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ ابتدا میں پاکستان کے مشرقی صوبے کا نام مشرقی بنگال ہی تھا، جو 1 یونٹ کے قیام کے وقت مشرقی پاکستان کر دیا گیا تھا۔ 1 یونٹ کا مقصد صوبائی تعصبات کو ختم کرنا تھا، جبکہ 1 یونٹ کے بعد ملک میں نہ کوئی بنگالی رہے گا، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ پٹھان، نہ بلوچ، نہ بھاولپوری اور نہ ہی خیرپوری رہے گا۔ کوئی رہے تو وہ ہوگا پاکستانی اور صرف پاکستانی۔ 25 فروری 1948 کو مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو رکن دھریندر ناتھ دتا نے متحدہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی کارروائی میں اردو کے ساتھ بنگالی کے استعمال کے لیے قواعد میں ترمیم کرنے کی تحریک پیش کی۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا، پاکستان کے لیے جدوجہد برِ صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے کی تھی، جن کی زبان ان کے بقول اردو تھی، اور ایوان نے یہ تحریک مسترد کر دی۔ بنگالی زبان سے متعلق ایوان میں پیش کی گئی تحریک مسترد ہونے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو اس پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد جب مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے بھی اردو کو قومی زبان بنانے کے حق میں بیان دیا تو صوبے میں احتجاج شروع ہو گیا۔ جنوری میں شیخ مجیب طالبہ تنظیم ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ اس تنظیم نے بنگالی زبان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فروری کے اختتام تک قومی زبان کے معاملے پر مشرقی پاکستان میں بے چینی بڑھنے اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے باقاعدہ تحریک چلانے کے لیے ایکشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی۔ مارچ میں بنگالی زبان کا مسئلہ تنازعہ کی شکل اختیار کر گیا۔ مشرقی بنگال میں طلباء نے پہلا احتجاج کیا۔ 11 مارچ کو بنگالی قومی زبان قرار دینے کے حق میں مظاہرہ کرنے والے طلباء پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ احتجاج کی شدت بڑھنے کے بعد وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے طلباء کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں بنگالی زبان کو مشرقی بنگال میں سرکاری اور تعلیمی زبان بنانے پر آمادگی ظاہر کی گئی۔ اس معاہدے میں بنگالی کو ریاستی زبان بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ مشرقی بنگال کی اسمبلی سے تو وعدے کے مطابق بنگال کے حقوق میں قرارداد منظور کر لی گئی، لیکن ایکشن کمیٹی سے ہونے والے وعدے کے مطابق مرکزی اسمبلی میں قرارداد پیش نہیں کی جا سکی۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ پہنچنے والے تھے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ خواجہ ناظم الدین نے یہ طلباء کے دباؤ میں آ کر مطالبات تسلیم کیے ہیں۔ ان کے نزدیک مشرقی بنگال اسمبلی کی بنگالی کے معاملے پر منظوری کی گئی قرارداد کا اطلاق مرکزی حکومت پر نہیں ہوتا تھا۔ 31 مارچ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ کا دورہ کیا اور ریس کورس میدان میں خطاب کرتے ہوئے اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیا۔ تو ڈھاکہ سے واپسی پر ریڈیو سے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے اس بیان کا اعادہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس بیان پر مشرقی پاکستان کے بعض حلقوں نے کڑی تنقید کی۔ 30 جون مسلم لیگ بنگال میں خواجہ ناظم الدین اور متحدہ بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی کے درمیان سیاسی چپکلش پائی جاتی تھی۔ اس طرح مولانا عبدالحمید بادشاہی کی مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ اختلافات بڑھ گئے۔ فروری میں بنگال مسلم لیگ کی تنظیم 9 کے بعد یہ مولانا باشانی، فضل الحق اور دیگر رہنماؤں نے مسلم لیگ سے علیحدگی کا اعلان کر کے نئی جماعت عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ شیخ مجیب الرحمان اس وقت ایک طالب علم رہنما تھے اور بنگالی زبان تحریک کی وجہ سے جیل میں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں انہیں عوامی مسلم لیگ کا جوائنٹ سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ 14 ستمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگی رہنما خواجہ ناظم الدین ملک کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ 26 جنوری 1952 کو خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وزیر اعظم بن گئے اور سینئر بیوروکریٹ اور پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اردو کو قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا۔ 21 فروری کو خواجہ ناظم الدین کے بیان کے خلاف مشرقی بنگال میں ہڑتال ہوئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کے ایک جلوس کا پولیس سے تصادم ہوا، جس میں 8 طلباء ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس تصادم میں ہلاک ہونے والے طلباء کی یاد میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں شہید مینار تعمیر کیا گیا۔ بعد میں اقوام متحدہ نے 21 فروری کو مادری زبانوں کو عالمی دن قرار دے دیا۔ فروری میں شدید احتجاج کے بعد مشرقی بنگال اسمبلی نے اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان بنانے کی قرارداد منظور کر لی۔
दिसंबर 1954 मशरकी बंगाल के इंतखाबात से कबल हुसैन शहीद सरवर्दी, मौलाना बाशानी और शेख मुजीब की अवामी लीग, फजल हक की कृषक सलामत पार्टी, बाएं बाजू की जमात गणतंत्री दिल और निजाम इस्लामी पार्टी ने मुत्तहिदा मुहाजिया जगतू फ्रंट के नाम से 4 जमाती इंतखाबी इत्तेहाद बनाया। मुख्तलिफ फिक्र से ताल्लुक रखने वाली जमातों के इस इत्तेहाद ने 21 नुकाती प्रोग्राम पर इत्तफाक किया था, जिसमें बंगाली को सरकारी जुबान बनाने और 1940 की करारदाद लाहौर के मुताबिक सूबाई खुदमुख्तारी जैसे मुतालबात शामिल थे। मशरकी बंगाल के सूबाई इंतखाबात में जगतू फ्रंट को कामयाबी हासिल हुई और मुल्क की बानी जमात मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई। अप्रैल में शेर बंगाल ए.के. फजल हक जगतू फ्रंट की हुकूमत के वजीर आला बने। वाज़ेह रहे कि ए.के. फजल हक ने 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर पेश की थी। 15 मई को अवामी लीग के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान जगतू फ्रंट की हुकूमत की काबीना में बतौर वजीर शामिल हुए। वो काबीना के सबसे कम उम्र वजीर थे और उन्हें ज़राअत जंगलात के कलमदान दिए गए। सूबाई इंतखाबात के बाद से मशरकी बंगाल में बंगाली और गैर बंगाली आबादी के दरमियान तल्खियाँ बढ़ना शुरू हो गई थी। नारायणगंज की आदमजी जूट मिल्स में 2 मजदूरों के दरमियान लड़ाई के बाद खूनरेज फसादात शुरू हो गए। ये मिल्स मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सरमायादार खानदान की मिल्कियत थी। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी गैर बंगालियों के कत्ल आम के वाक़यात पेश आए। 29 मई को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की मरकजी हुकूमत ने मशरकी बंगाल की सूबाई हुकूमत बरतरफ करके गवर्नर राज नाफिज कर दिया। आदमजी जोट मिल्स में होने वाले फसादात बाद अमन व अमान की सूरत हाल काबू करने में नाकामी और वजीर आला ए.के. फजल हक के भारत के साथ मिलकर मुत्तहिदा बंगाल बनाने की साजिशों के इल्जामात को सूबाई हुकूमत की बरतरफी की वजह बताया गया। मशरकी बंगाल का वजीर आला बनने के बाद ए.के. फजल हक ने भारत में मगरबी बंगाल का दौरा किया, जिसमें इन्होंने बंगाल की तकसीम पर इज़हार अफसोस किया था। मरकजी हुकूमत ने इनके इस बयान को मुत्तहिदा बंगाल बनाने की ख्वाहिश और मुल्की सालमियत के खिलाफ करार दिया। 21 जून को शेख मुजीबुर रहमान पहली मरतबा दस्तूर साज असेंबली के रुकन बने। 6 अक्टूबर 1955 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट का कयाम अमल में आया, जिसके बाद बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब और सिंध को मिलाकर मगरबी पाकिस्तान के नाम से एक नया सूबा बना दिया गया और मशरकी बंगाल का नाम तब्दील करके मशरकी पाकिस्तान कर दिया गया। इस इक़दाम की मुल्क के दोनों हिस्सों में मुखालफत की गई। 29 फरवरी को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ, जिसका नफाज 23 मार्च 1956 को हुआ। 4 मार्च को आइन की मंजूरी के बाद सिकंदर मिर्जा सदर बन गए और चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम रहे। 9 मार्च को ए.के. फजल हक को मशरकी बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। 12 सितंबर को बंगाल के मकबूल रहनुमा हुसैन शहीद सरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम बने। 3 अप्रैल को मशरकी पाकिस्तान असेंबली में मुकम्मल सूबाई खुदमुख्तारी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई। 11 अक्टूबर को सदर सिकंदर मिर्जा ने वजीर आजम हुसैन शहीद सरवर्दी से इस्तीफा ले लिया। 9 जून को सदर सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान की बरी अफराज के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी। 7 अक्टूबर को आइन साजी के बाद 1957 में इंतखाबात मुनक्किद होना थे, जिन्हें सिकंदर मिर्जा ने सदर बनने के बाद 1959 तक मुलतवी कर दिया था। इंतखाबात की सूरत में इन्हें अपने मनसब सदारत से हाथ धोने का खदशा दरपेश था, इसलिए इंतखाबात मजीद मुलतवी करने के लिए इन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया। 27 अक्टूबर को फौज के दबाव पर सिकंदर मिर्जा सदारत से मुस्तफी हो गए और इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर अयूब खान के हाथ में चला गया। मार्शल लॉ में सियासी सरगर्मियों और तलबा तंजीमियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मशरकी पाकिस्तान में मौलाना बाशानी और शेख मुजीबुर रहमान समेत सियासी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया था। जनवरी 1960 में अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेट से इत्तेमाद का वोट लिया और सदर मुंतखब हो गए। अयूब खान ने इससे कबल मुल्क में बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम मुतारिफ कराया था। 17 फरवरी 1960 को अयूब खान ने पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत की नाकामी के बाद मुल्क में नए निज़ाम हुकूमत की तश्कील के लिए जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में एक आइनी कमीशन बनाया। कमीशन ने इस सिलसिले में तजावीज़ जमा कराना शुरू कर दी। अयूब खान मुस्तकबिल के आइन से मुतल्लिक अपनी राय पहले ही वाज़े कर चुके थे। अयूब खान एक ऐसा निज़ाम हुकूमत चाहते थे जिनमें मरकजी हुकूमत हो और सियासी जमातों का वजूद न हो। दूसरी जानिब मशरकी पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकाई खुद मुख्तारी की हिमायत बढ़ने लगी। 1960 के अप्रैल और मई के वस्त में कौमी व सूबाई असेंबलियों के गैर जमाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया। मुल्क में सियासी जमातों की बहाली के लिए कानून साजी पर इख्तलाफात भी जोर पकड़ने लगी। मार्शल लॉ के नफाज के बाद मशरकी व मगरबी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली का मुतालबा करना शुरू कर दिया।
30 जनवरी को हुसैन शहीद सरवर्दी को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीब और अवामी लीग के दीगर रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया गया। 8 जून को सदर अयूब की हुकूमत ने पाकिस्तान में एक और आइन का नफाज किया। माजी के मुकाबले में ये आइन सदारती निज़ाम हुकूमत पर मबनी था और इसमें सदर को इख्तियारात का महवर बनाया गया था। इस आइन में मुल्क के नाम से इस्लामी हटाकर जमहूरिया पाकिस्तान कर दिया गया था। जनवरी में शेख मुजीब की कोशिशों से मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग बहाल हो गई और वो इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए। इस पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान के लिए मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा कर दिया, जिसमें मरकजी हुकूमत के लिए सिर्फ दिफा, वजारत खारजा और करेंसी के शोबे रखने की तजवीज़ दी गई थी। जून में अवामी लीग ने 11 नुकाती मंशूर पेश किया और इस हक में मशरकी पाकिस्तान में भरपूर मुहिम चलाई। बाद अज़ां 1966 में शेख मुजीब के 6 नुकाती प्रोग्राम में इन मुतालबात को शामिल कर लिया गया। 2 जनवरी 1965 में मुल्क में सदारती इंतखाबात हुए और अयूब खान के मुकाबले में अपोजिशन ने फातिमा जिन्ना की हिमायत की। अयूब खान सदारती इंतखाबात में कामयाब हुए, अलबत्ता मशरकी पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना को 47% वोट मिले। 6 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई। मशरकी पाकिस्तान में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दखल अंदाजी की मुखालफत की गई और मशरकी पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर जंग के आगाज पर भी तनकीद सामने आई। 10 जनवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तशकन मुआहिदा हुआ। मगरबी पाकिस्तान में इस मुआहिदे पर एहतजाज, जबकि मशरकी हिस्से में खैर मकदम किया गया। फरवरी में मगरबी पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमायतों की तशकन मुआहिदे पर कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में शेख मुजीब ने मशरकी पाकिस्तान के मुतालबात पर 6 नुकात पेश किए, लेकिन कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर अपोजिशन जमायतों ने इन पर बहस से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात में मुल्क के लिए 1940 की करारदाद लाहौर के मुताबिक मुतफ़िका आइन की मंजूरी और बालिग हक राय दही की बुनियाद पर इंतखाबात कराने का मुतालबा सरफरस्त था। वफाक को सिर्फ दिफा और खारजा अमूर देने की बात की गई थी। इसके अलावा मुल्क के मशरकी और मगरबी हिस्सों के लिए अलग अलग मरकजी बैंकों के क़याम, महसूलात और दीगर ज़राए आमदन सूबों के हवाले करने और दोनों हिस्सों के लिए अलहदा ज़राए मुबादला के ज़खायर रखने का मुतालबा किया गया था। इसके अलावा अलहदा करेंसी जारी करने की तजवीज़ भी दी गई थी। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के लिए अलहदा फौज या नीम फौज फोर्स के क़याम और पाकिस्तान बहरिया का हेडक्वार्टर मशरकी पाकिस्तान मुंतकिल करने के मुतालबात भी 6 नुकात में शामिल थे। 16 मार्च को अयूब खान ने शेख मुजीब के पेश करदा 6 नुकात को खुद मुख्तार बंगाल के हुसूल का ख्वाब करार दे दिया। जून में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना से मुस्तफ़ी हो गए। वो अयूब खान की काबीना में वजीर खारजा रहे थे। 30 नवंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के नाम से नई सियासी जमायत कायम की। जनवरी में शेख मुजीब और 35 दीगर सिविल और अस्करी एहलकारों पर भारत के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की साजिश करने का इल्जाम लगा। उसे अगरतला साजिश के नाम से जाना जाता है। 9 मई को अगरतला साजिश केस में गिरफ्तार शेख मुजीब और दीगर मुल्ज़िमान को आर्जी तौर पर रिहा कर दिया गया। 7 नवंबर को अयूब खान ने 1968 में अपनी हुकूमत के 10 साल मुकम्मल होने पर उन्हें खुशहाली के 10 साल के तौर पर मनाया। इस सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद भी किया गया और साथ ही मुल्क में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस एहतजाज में तुलबा पेश थे। 7 नवंबर को रावलपिंडी में एक ऐसे ही एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान एक तसादम हुआ, जिसने इस एहतजाजी लहर को अयूब खान के खिलाफ तहरीक में बदल दिया। 13 नवंबर को अयूब खान के खिलाफ तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके बाद हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, अब्दुल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। नवंबर और दिसंबर 1968 के वस्त और आखिर में अयूब खान के खिलाफ एहतजाज में हलाकतें होती रहीं और मुल्क के दोनों हिस्सों में हलाकतें कंट्रोल से बाहर होने लगीं। 5 फरवरी को अयूब खान ने अपोजिशन जमायतों को मुज़ाकरात की दावत दी। 17 फरवरी को पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान नाफिज किए गए हंगामी हालात के खात्मे का ऐलान किया गया और भुट्टो और वली खान समेत गिरफ्तार सियासतदानों को रिहा कर दिया गया। 22 फरवरी को शेख मुजीब ने ढाका में बालिग हक राय दही की बुनियाद पर बराह रास्त इंतखाबात और अपने 6 नुकात की बुनियाद पर सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा किया। फरवरी और मार्च में इस दौरान अयूब खान और सियासी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ, जो नतीजा खेज साबित नहीं हो सका। 24 मार्च को सदर अयूब खान ने पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल आगा मोहम्मद यहया खान को खत लिखकर मुल्की अमूर अपने इख्तियार में लेने की दरख्वास्त की। 25 मार्च को यहया खान ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया और 1962 का आइन मनसूख कर दिया। अप्रैल में यहया खान ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान सियासी डेडलॉक दूर करने के लिए सियासी क़यादत से बातचीत का आगाज किया। 28 नवंबर को यहया खान ने 5 अक्टूबर 1970 को बालिग राय दही की बुनियाद पर पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया।
1 जनवरी 1970 को मुल्क में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई, जिसके साथ मुल्क में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया। इसे पाकिस्तान की तारीख की तवील तरीन इंतखाबी मुहिम भी करार दिया जाता है, जो लगभग 1 साल तक जारी रही। शेख मुजीब ने 1970 के आम इंतखाबात की मुहिम के लिए अपने 6 नुकात को बुनियाद बनाया। 30 मार्च 1970 को यहया खान ने मगरबी पाकिस्तान का सूबा तहलील कर दिया, जिसके बाद मगरबी हिस्से में 4 सूबे वजूद में आ गए। यहया खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाफिज कर दिया, जिसमें सूबों की कौमी असेंबली में नुमाइंदगी और दीगर इंतखाबी कवायद की तफसीलात शामिल थी। LFO में मुंतखब होने वाली दस्तूर साज असेंबली को 120 दिनों के अंदर आइन बनाने का पाबंद किया गया था। 12 नवंबर 1970 को मशरिकी पाकिस्तान में तबाहकुन समंदरी तूफान आया, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ। 27 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसमें अवामी लीग ने मशरिकी पाकिस्तान की 162 में से 160 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मगरबी पाकिस्तान में 138 में से 81 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती। इंतखाबी नताइज आने के बाद अवामी लीग को दस्तूर साज असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। 3 जनवरी 1971 को शेख मुजीब ने ढाका के रेस कोर्स मैदान में तकरीर करते हुए ऐलान किया कि हमें अब कोई 6 नुकात की बुनियाद पर आइन बनाने से नहीं रोक सकता। इंतखाबी नताइज के बाद शेख मुजीब और भुट्टो में सियासी इख्तिलाफात बढ़ने लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वफाकी निज़ाम हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर रहे थे और वाज़ेह कर चुके थे कि पीपल्स पार्टी के बगैर मरकज़ में बनने वाली कोई हुकूमत काम नहीं कर सकेगी। शेख मुजीब का मौक़िफ़ था कि वो मरकज़ और सूबे में तनहा हुकूमत बनाएंगे और आइन साजी की बुनियाद इनकी पेश करदा 6 नुकात ही होंगे। जनवरी में सदर यहया खान ने शेख मुजीब को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद शेख मुजीब ने बातचीत के लिए मगरबी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। जनवरी 1971 के दूसरे हफ्ते में यहया खान ने ढाका पहुंचकर शेख मुजीब से मुलाकातें की। 14 जनवरी को ढाका से वापसी पर यहया खान ने शेख मुजीब को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म करार दे दिया। 17 जनवरी को यहया खान भुट्टो की दावत पर शिकार खेलने दीगर आला फौजी अफसरान के हमरा लाड़काना गए। 27 जनवरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफद ने ढाका में शेख मुजीब से 3 रोज़ा मुज़ाकरात किए। 11 फरवरी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर यहया खान से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अवामी लीग आइन का मसूदा तैयार कर चुकी है, जिसे वो बआसानी कौमी असेंबली से मंजूर करा सकती है। भुट्टो ने इस मुलाकात में सदर यहया खान को मशवरा दिया कि कौमी असेंबली का इजलास मार्च के आखिर तक न बुलाया जाए। 13 फरवरी को सदर यहया खान ने 3 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। 15 फरवरी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पेशावर में ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। भुट्टो के इस फैसले पर अवामी लीग के मुखालफिन ने भी तनकीद की। मगरबी पाकिस्तान में सिवाय मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के सभी जमायतों ने असेंबली के इजलास में शिरकत का फैसला किया। 19 फरवरी को सदर यहया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई, जो 5 घंटे तक जारी रही। 20 फरवरी 1971 को यहया खान के नाफिज करदा LFO में तरमीम कर दी गई, जिसके बाद रुकन असेंबली को हलफ उठाने से कबल मुस्तफ़ी होने का इख्तियार दे दिया गया। LFO में तरमीम के कबल अरकान पर इस्तीफ़ा देने से पहले इजलास में शरीक होकर हलफ उठाने की शर्त आयद की गई थी। भुट्टो अपनी जमायत के अरकान असेंबली से पहले इस्तीफ़ा लेकर अपने पास रख चुके थे और इस तरमीम के बाद वो अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी रुकन का इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकते थे। 28 फरवरी को सदर यहया खान ने कौमी असेंबली का तलब किया गया इजलास मुलतवी कर दिया। 4 मार्च को इस फैसले पर मशरकी पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद सदर यहया खान ने 10 मार्च को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के सवा दीगर जमातों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। 5 मार्च को मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर साहिबजादा याकूब खान मुस्तफ़ी हो गए। उसी रोज यहया खान ने रेडियो से खिताब करते हुए 25 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास तलब करने का ऐलान भी किया। 7 मार्च को शेख मुजीब ने जलसा आम में फिल-4 मार्शल लॉ खत्म करने और इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने का मुतालबा किया। इन्होंने मुतालबात पूरे न होने तक कारोबार हुकूमत बंद करने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद मशरकी पाकिस्तान में हुकूमती रिट अमलन खत्म हो चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान में हालात कशीदा होने के बाद बड़ी तादाद में मकामी आबादी की नकल व मकानी का आगाज हुआ और भारत ने अपनी सरहद पनाह गजीरों के लिए खोल दी। 14 मार्च को यहया खान ने मशरकी पाकिस्तान रवाना होने से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की, जिसके बाद भुट्टो ने मुतालबा किया कि मुल्क के दोनों हिस्सों में इक़्तिदार अक्सरियती जमायतों को मुंतकिल कर दिया जाए। मगरबी पाकिस्तान की दीगर सियासी जमायतों ने भुट्टो के मुतालबे को पाकिस्तान की तकसीम के मुतरादिफ करार दिया और उसकी मुखालफत की। 15 मार्च को सदर यहया खान ढाका पहुंचे और सूबाई गवर्नर के अलावा दीगर इंतजामी और फौजी अफसरान से मुलाकात की।
16 मार्च को सदर यहया खान और शेख मुजीब की मुलाकात हुई। अगली सुबह गुफ्तगू का दूसरा दौर शुरू हुआ। इन मुलाकातों में सदर यहया और शेख मुजीब के अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं था। 17 मार्च यहया खान और अवामी लीग के दरमियान इंतकाले इक़्तिदार का तरीक़ेकार तय करने के लिए मुलाकात हुई। 19 मार्च को शेख मुजीब एक बार फिर यहया खान से मिले और मार्शल लॉ उठाने का मुतालबा दोहराया। सदर यहया के मुशीरों ने दलील दी कि अगर 25 मार्च को जारी करदा मार्शल लॉ के नफाज का हुक्मनामा मनसूख किया जाता है तो मरकजी और सूबाई हुकूमतों के क़याम के लिए फराहम करदा कानूनी बुनियाद खत्म हो जाएगी। इस सिलसिले में अवामी लीग और सदर यहया के कानूनी मुशीरों में मुज़ाकरात के कई दौर हुए जो बेनतीजा रहे। 21 और 19 मार्च को मगरबी पाकिस्तान की सियासी जमायतों की ढाका आमद शुरू हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बड़े वफद के साथ मशरकी पाकिस्तान पहुंचे और सदर यहया से भी मुलाकात की। 22 मार्च को सदर यहया की मौजूदगी में शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई, लेकिन आईनी और कानूनी मसाइल पर डेडलॉक बरकरार रहा। 24 मार्च को अवामी लीग और सदर यहया की मुशीरों के दरमियान आइन साजी पर मुज़ाकरात हुए। अवामी लीग ने अपने मौजूदा मसूदे में तरमीम की और उसमें पाकिस्तान को एक यूनियन के बजाय कॉन्फेडरेशन बनाने की तजवीज़ दी, जिसमें इख्तिलाफ पैदा हुआ। 25 मार्च को मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज हो गया। शेख मुजीब और अवामी लीग के दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शेख मुजीब को मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया था। मशरकी पाकिस्तान में फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स के बंगाली अफसरान, फौजियों और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की बगावत शुरू हो गई। 26 मार्च को यहया खान ने रेडियो पर कौम से खिताब में अवामी लीग पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया और शेख मुजीब पर बगावत के इल्जामात लगाए। हुकूमत पाकिस्तान ने इल्जाम आयद किया कि अवामी लीग 24 मई से ही अलहदगी के लिए मुसल्लह बगावत की तैयारी कर रही थी। अवामी लीग ने इन इल्जामात की तरदीद की। 27 मार्च को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान से गैर मुल्की सहाफ़ियों को निकाल दिया गया। मार्च 1971 को शुरू होने वाली फौजी कार्रवाई के बाद मशरकी बंगाल रेजिमेंट के दीगर यूनिट से भी बगावत होने लगी और मशरकी पाकिस्तान के कई इलाकों में फौज और बागी आमने सामने आ गए। 10 अप्रैल को अवामी लीग के मुंतखब अरकान ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। 17 अप्रैल को अवामी लीग ने भारत की सरहद मुस्तसल कश्तिया के एक गांव में अपनी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें गैर मुल्की मीडिया को भी मदऊ किया गया। मई 1971 हुकूमत ने कई इजला का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। मज़ामत करने वालों की बड़ी तादाद रूपोश हो गई। जुलाई में मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गोरिल्ला कार्रवाइयाँ शुरू हो गयी। अगस्त में भारत ने मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर 8 डिवीजन फौज तैनात कर दी और साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नफरी भी बढ़ा दी। 14 अगस्त को पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीबात और हुकूमत के हामियों पर हमलों के पंफलेट तकसीम किए गए और यौम आज़ादी पर ढाका समेत पूरे सूबे का माहौल कशीदा रहा। अगस्त में अलहदगी पसंद मुसल्लह फोर्स की कार्रवाइयों में तेजी आ गई। पाकिस्तान फौज के लिए सामान रसद लाने वाले बहरी जहाज़ों पर मुक्ति बाहिनी कब्जा करने लगी। अलहदगी पसंदों के ढाका में धमाकों की वजह से पानी और बिजली की फराहमी शदीद मुतासिर हुई और शहरियों ने नकल व मकानी शुरू कर दी। 3 नवंबर को भारत की फौज और अलहदगी पसंदों ने मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर गोलाबारी और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। 14 नवंबर को भारत की फौज ने चट्टागांग के इलाके में पेशकदमी शुरू कर दी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने मगरबी महाज खोल दिया और फिजाइया ने श्रीनगर, पठानकोट, हलवाड़ा समेत भारतीय फिजाइया के अड्डों को निशान बनाया। भारत के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इस हमले को जंग का आगाज करार दिया। जंग शुरू होने के बाद भारत की बड़ी फौज ने ढाका की जानिब तेजी से पेशकदमी की और उन्हें पाकिस्तान के मुकाबले में बंगाल की अलहदगी पसंद हलकों का ताउन भी हासिल था। 16 दिसंबर को भारत की फौज ने ढाका का घेराव कर लिया और पाकिस्तान फौज को लड़ाई से दस्तबरदार होने का कहा। कमांडर ईस्टर्न कमांडर जनरल AK नियाजी की हिदायत पर पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाल दिए। 8 जनवरी शेख मुजीबुर रहमान 25 मार्च 1971 को फौजी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मगरबी पाकिस्तान में जेर हिरासत थे। बांग्लादेश के कयाम के बाद इन्हें 8 जनवरी 1972 को रिहा किया गया, जिसके बाद वो लंदन रवाना हो गए, जहां इन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया से बात की। इसके बाद वो नई दिल्ली गए, जहां इन्होंने भारत के सदर और वजीर आज़म इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उसके बाद वो ढाका पहुंचे। उससे कबल 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो न्यूयॉर्क से पाकिस्तान पहुंच गए थे। वो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुल्क वापसी के बाद सदर यहया खान ने इक़्तिदार उन्हें मुंतकिल कर दिया। भुट्टो पाकिस्तान के सदर और पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। 1973 के आइन की मंजूरी के बाद इन्होंने वजीर आज़म का ओहदा इख्तियार किया। पाकिस्तान को बांग्लादेश के क़याम के बाद वहाँ 1971 में मरकजी हुकूमत का साथ देने वाले शहरियों और एहलकारों के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात का खदशा था, इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश को तस्लीम करने में पसो पेश का शिकार था।
सन 1974 में सऊदी अरब, अर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया ने बांग्लादेश को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते शुरू कर दिए। बिलाकर 22 फरवरी 1974 को वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इससे कबल 2 जुलाई 1972 को जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने शिमला मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद 1971 की जंग में कैदी बनने वाले पाकिस्तान फौजी और सिविलियंस की रिहाई की राह हमवार हुई और दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े कश्मीर समेत 2 तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर भी नुकात तय किए गए। अल्लाह हाफिज।